So basically, we will uh, we will complete this chapter 1 today. इस अध्याय को आज हम पूरा करेंगे, पहला अध्याय। This chapter is a very helpful chapter for us. ये अध्याय जो है हम सबके लिए बहुत ही जो मदद देने वाला अध्याय है। Personally, to me, it's a very helpful and meaningful chapter. और विशेष रूप से मेरे लिए ये बहुत ही सहायक रहा है। So, just to recap a little bit, और मैं फिर से कुछ बातों को दोहराना चाहता हूँ। this was written by the Apostle John, the brother of James. ये पत्र जो है प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया, जो याकूब के भाई। James was killed, and John has written the Gospel of John, the Epistles of John, and the Revelation. तो जो याकूब है वो मारे गए, और यूहन्ना ने जो है यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है। फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना जो पत्र हैं उन्हें लिखा है, और फिर प्रकाशित वाक्य भी उन्होंने लिखा है। So, here we'll read once again from verse 1 to 4. और अभी फिर से हम पहले अध्याय का पहले वचन से चौथे वचन तक पढ़ेंगे। What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, and what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. These things we write so that our joy may be made complete. पहला यूहन्ना पहले से चौथे वचन तक उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। So, brothers and sisters, I hope since we are having a Bible study, we all have our Bibles with us, and we can see verse by verse. मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि ये एक बाइबल अध्ययन है, तो आप सब ने अपने जो बाइबल्स हैं अपने सामने खोल कर रखे हैं, और वचन एक एक वचन लेकर हम इसका अध्ययन करेंगे। So, the Apostle John writes that what was from the beginning, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen, what we have looked and touched, that we are describing to you. तो प्रेरित यूहन्ना ये कह रहे हैं कि वे उस विषय में बता रहे हैं जो आदि से था, और जिसके बारे में उन्होंने सुना है और अपनी आंखों से देखा है और हाथों से छुआ है। So, what was from the beginning was the Creator, Jesus Christ. और जो आदि से था वो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। And that they had the privilege of hearing, seeing, and touching uh, uh, that life. और उन्हें ये सौभाग्य मिला कि वो उस जीवन जो अनंत जीवन है उसको सुने, उसको देखें और उसको छू पाए। So when Jesus came to this earth as a man, the main thing what they were attracted when they saw Jesus was his life. जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जिस बात से वो
उन्हें देखकर आकर्षित हुए, वो उनका जीवन था। They were not so much attracted mainly by those great miracles and wonders that Jesus did, but they were touched by the life of Jesus. और जो भी चमत्कार और जो भी अद्भुत कार्य जो यीशु मसीह ने किए, उससे वो इतना आकर्षित नहीं हुए जितना उन्होंने उनके जीवन को देखकर उन्हें आकर्षण जो महसूस हुआ। That's why he's keeping on saying what we have heard. The words that of Jesus were words of life. तो इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि जो वचन हमने सुने वो जीवन के वचन है। So he says, the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life. और दूसरे वचन में वो कहते हैं कि जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। So the eternal life is not just a length of time, length of days. That is not eternal life. Eternal life is the is the life of God. The quality of life of God is eternal life. तो जो अनंत जीवन जो जिसके बारे में यहाँ कहा गया है, वो सिर्फ दीर्घ आयु नहीं है, वो लेकिन वो सिर्फ जो आयु की जो जितना दिन तक लोग जीते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है, लेकिन उस जीवन का जो गुण है उसको दर्शाता है। So this eternal life which was with the Father was manifested to them. और ये जो जीवन पिता के साथ था, वो जीवन प्रकट हुआ। He is repeating the third time in verse 3, what we have seen and heard we proclaim to you. और इसीलिए वो फिर से तीसरे वचन में फिर से दोहराते हैं और कहते हैं कि जो हमने देखा और सुना है उसी को हम तुम्हें भी देते हैं। So the burden of the Apostle John is to tell about Jesus to all of us so that we will also be encouraged. तो ये जो बोझ प्रेरित यूहन्ना के दिल में था, वो ये था कि जो उन्होंने सुना उसके बारे में वो हमें भी बताए, ताकि हम भी उसके सहभागी बन जाए। So just as the apostles were really blessed and encouraged by the life of Jesus, we too can be encouraged about the life of Jesus. जिस प्रकार जो शिष्य हैं, जिस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन मिला जो यीशु मसीह का जीवन को देखकर, तो वही प्रोत्साहन हमें भी मिले, वही ये बात यूहन्ना चाहते हैं। So in that sense, the apostle will have fellowship with all those who have the life of Jesus. तो इस प्रकार से प्रेरित यूहन्ना का भी उन लोगों के साथ सहभागिता रहेगी जो इस जीवन को जानते हैं। So he wanted to write to the people so that they could have fellowship with him. तो वो इसीलिए उन लोगों को के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा, ताकि उन्हें भी जो उनके साथ जो लोग थे उनके साथ उन्हें संगति मिले। The word fellowship means companionship. तो सहभागिता का मतलब है कि दोस्ती। So, brothers and sisters, when uh, we have fellowship with one another, uh, we can encourage one another in the life of Jesus. तो जब हमारे एक दूसरे के साथ सहभागिता रहती है, तो हम एक दूसरे को अपने यीशु मसीह के साथ जो जीवन है, मसीही जीवन, उसमें हम एक दूसरे का प्रोत्साहन बन सकते हैं। And then he says that their fellowship is with the Father and with the Son Jesus Christ. और फिर वो कहते हैं कि हमारी सहभागिता जो है वो पिता और पुत्र के साथ। So, our fellowship or companionship is with God and with one another. तो हमारी जो सहभागिता है वो पिता और पुत्र यीशु मसीह के साथ और एक दूसरे के साथ। We cannot have fellowship with one another and not have fellowship with God. That cannot be possible. ये नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के साथ जो है संगति रखें, लेकिन
यीशु मसीह और पिता के साथ संगति में ना रहे, ये नहीं हो सकता। Similarly, if we say that we have fellowship with God and no fellowship with one another, that also is not possible. अगर हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ तो संगति है, लेकिन एक दूसरे के साथ संगति नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी सच्चाई नहीं है। So this chapter speaks about fellowship with God. तो ये जो अध्याय है, ये परमेश्वर के साथ सहभागिता या संगति के बारे में हमें समझाता है, And also it speaks about fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ जो संगति है उसके बारे में भी वो हमें सिखाती है। Two important aspects in the Christian life. ये दो ऐसे प्रमुख जो है भाग है जो मसीही जीवन का भाग है। Our hearts must desire to always have fellowship with God and with our brothers and sisters. और हमारे दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संगति में रहें। So then he says, these things we are writing so that our joy will be made complete. और फिर वो कहते हैं चौथे वचन में, हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। So he's conveying his burden and he says that is his joy. When his joy will be complete, when he shares what is there in his heart. और जब वो अपने जो दिल में जो बातें हैं उसे बांटते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। Now we'll read our passage. और अभी हम आगे की 5वें वचन से पढ़ेंगे। Verse 5 says, this is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। See, the Apostle John is saying this is a message which we have heard from him, that means from Jesus. तो यहाँ जो प्रेरित यूहन्ना वो कह रहे हैं कि हमने ये समाचार उनसे सुना है, मतलब उन्होंने ये समाचार यीशु मसीह से सुना है। Jesus told them that God is light, in him there is no darkness. और यीशु ने उनसे कहा था कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। God is light means he's absolutely pure. तो परमेश्वर ज्योति है, इसका ये मतलब है कि वो पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है। He does everything correctly, rightly. There is nothing there is no error in his life. तो उनके जीवन में सब कुछ ठीक है और सब कुछ सच्चा है और उसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं। So there is no darkness. There is not a spot of wrongdoing in God's life. तो उनमें बिल्कुल भी कोई भी अंधकार नहीं है और एक प्रकार का भी कोई कलंक नहीं है उनके जीवन। So this we must be always convinced. तो इस बात के बारे में हमें पूरी तरह हमें अपने जीवन में हमें ये निश्चित होना चाहिए कि ये सच्चाई है। Some people have very different opinions about God. That God is not so good. He does all things. They have a warped idea of God. कई बार हम देखते हैं कि लोगों का जो है परमेश्वर के बारे में बहुत ही अलग तरह का विचार होता है कि परमेश्वर पूरी तरह भला नहीं है, वो एकदम वो एक फिरा हुआ उनका सोच रहता है। So this is very important to know that God is absolutely pure. तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र है, He's absolutely good. वो पूरी तरह भला है। And it says God is light. और कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। Okay, and we can read in 1 Timothy chapter 6 verse 16. और हम इसके बारे में पहला तिमोथी 6वां अध्याय और उसका 16वें वचन में हम देख सकते हैं। Here it is speaking about Jesus, who is God. और यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है जो परमेश्वर है। Jesus is right now in glory and he's God. So it speaks about God in verse 16. वो महिमा में
है अभी यीशु मसीह महिमा में, और उनके बारे में ये कहा गया है 16वें वचन में, who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to him be honor and eternal dominion. Amen. पहला तिमोथी का 6वां अध्याय उसका 16 वचन, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। So, so again here it says God dwells in unapproachable light. और यहाँ फिर से दोहराया गया है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है। You know the light of a sun and how powerful it is. हम जानते हैं कि सूरज का जो जो ज्योति है जो कितना प्रकाश देता है, But we approach that light. हम उसके सामने जा सकते हैं। But this light is much more than that, it's unapproachable. तो लेकिन ये जो ज्योति है इसके सामने हम खड़े नहीं रह पाए। Then it also says that he is the father of lights. और फिर एक वचन में कहा गया है कि वो अ, ज्योति के पिता हैं। Then Jesus said, I am the light of the world. और यीशु ने कहा कि मैं संसार का ज्योति हूँ। So, uh, so this is one very important truth which we will be blessed if we really know it. और ये ऐसा सत्य है जिसको हम जानकर आशीषित होंगे। Because, see, many people worship God. बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में परमेश्वर की आराधना करते हैं। Yeah, and for those who truly want to worship God, we must know that God is light. और जो सच्चे रूप से जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो जान लें कि परमेश्वर ज्योति है। So now we'll read verse 6. और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। If we say we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। So the Apostle John is saying they have fellowship. He said earlier that they have fellowship with God. तो यहाँ जो प्रेरित यूहन्ना वो कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि उनकी जो सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ। And he now puts everybody, he says, all those who say that they have fellowship with God, और फिर वो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता है and yet walk in darkness, then we are lying and do not practice the truth. और फिर हम अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। So he's saying that God is light, and we are saying that we are having fellowship with Him, but we are walking in darkness, and we are still saying that we have fellowship with God. Then we are lying. तो वो ये समझा रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सहभागिता है वो परमेश्वर के साथ है जो ज्योति है, और फिर भी हम अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठे हैं और हम सत्य हमारे अंदर नहीं है। We'll read John 8:12. हम यूहन्ना 8वें यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़ेंगे। It says, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Uh, so we'll read 1 John 2:11. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 11वां वचन। But the one who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because darkness has blinded his eyes. पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता
कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। So, brothers and sisters, what darkness represents is anything which is darkness is represented just like Jesus is light. Darkness is represented by the devil. तो जिस प्रकार से यीशु जो ज्योति है, जो प्रकाश है, तो उसका वो प्रतीक है, वैसे ही शैतान अंधकार को दर्शाता है। So, any quality of Satan in us is darkness. तो किसी भी अ, जो गुण जो शैतान में है, वो अगर हमारे अंदर है तो वो भी अंधकार ही है। If we don't love others, if we hate our brothers, that is darkness. तो अगर हम लोगों से प्यार नहीं करते, अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब हम अंधकार में हैं। If we are proud and haughty, that is darkness. तो अगर हम मंडी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो भी हम मंडी है, तो भी हम अंधकार में हैं। In other words, anything which is uh, unchristlike and anything which is sinful is darkness. तो अगर हमारे अंदर ऐसे जो स्वभाव है जो यीशु मसीह के समान नहीं है और उनके विरुद्ध जो हैं, तो फिर हमारे अंदर अंधकार वास करता So है। if we say we have fellowship with God who is light and if there is some darkness in us, then we cannot say that we have fellowship with God. तो अगर हम कहते हैं कि हम प्रकाश से सहभागिता रखते हैं, हमारे अंदर अंधकार है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकते। And the apostle says we are not practicing the truth. और प्रेरित कहते हैं कि हम सत्य पर नहीं चल रहे हैं। And then he says in verse 7, but if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of his son Jesus Christ cleanses us from all sin. और 7वां वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So, brothers and sisters, God is light, and we were all in darkness. All of us were in darkness. तो भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है ज्योति है, और हम जो हैं अंधकार में चलते थे। But when we came to know Jesus Christ, He translated us or transported us from the kingdom of darkness to His marvelous light. और लेकिन जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया या उनको जाना, तो यीशु मसीह ने हमें वो अंधकार के राज्य से हमें जो प्रकाश के राज्य में हमें अंधकार से ज्योति में वो लेकर आए। So, brothers and sisters, all of us who know Christ are children of light. तो भाइयों बहनों, जो भी हम में से जो भी मसीह को जानता है, वो जो है प्रकाश या ज्योति के संतान है। What a wonderful thing that it is God who has made us children of light. तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने ही हमें ज्योति का संतान बनाया है। We are not children of darkness. हम अंधकार के बच्चे नहीं हैं। We are children of light so that we can have fellowship with God. हम जो हैं ज्योति के संतान हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में रह सके। God made this because of our faith in Jesus Christ. और ये हो सका क्योंकि पिता ने जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको उन्होंने स्वीकार किया। He forgave our sins when we repented of our sins. तो जब हमने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। He cleansed it fully. और हमें पूरी तरह साफ किया। Then He gave us the gift of righteousness. और फिर उन्होंने हमें धार्मिकता का जो दान है वो दिया। The righteousness of Jesus He has given to us. और यीशु मसीह का जो धार्मिकता है उसी को हमें दिया। So that we can have fellowship with Him. और इस कारण हम उनके साथ जो है सहभागिता या संगति में रह सकते हैं। He has given us the
the Holy Spirit to live within us, और हमें जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए हमें दिया है, so that we can walk this wonderful life in the footsteps of Jesus. इसीलिए कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम चल पाए। So now we can listen to the Holy Spirit and walk this way. और इसीलिए हम आज जो है पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उस रास्ते पर हम चल सकते So now we have to walk in the light as He is in the light. तो हमें जो है ज्योति में चलना है, जिस प्रकार से वो भी जो परमेश्वर है वो ज्योति में है। What is the meaning of that? तो इसका अर्थ क्या हुआ? The meaning is that as much as we are aware of God's truth, तो इसका ये मतलब है कि जितना हम सत्य के बारे में जानते हैं, that much light we have. तो उतना हमारे हम उस सत्य या प्रकाश को जानते हैं। All of us have different, what do you say, levels of life, of light. तो हम में से हर एक का जो जीवन है वो अलग अलग स्तर पर है। So we have to live according to the level of light that we have. तो हमारे अंदर जितना स्तर का जो प्रकाश है उस स्तर के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। So that is all that we have to do. सिर्फ हमें उतना ही करना है। If we know that something is not pleasing to God, that we have the understanding, then that is the level of light that we must live by. तो अगर हमारे अंदर किसी बात के बारे में ज्ञान है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हमें उस स्तर पर हमें जीना है। So how does the light come? तो वो प्रकाश कैसे आएगा हमारे जीवन? When we read God's word, जब हम वचन पढ़ेंगे and we seek to obey the word of God, और हम उस आज्ञा का पालन करना चाहेंगे, then God gives us light in our life. तब परमेश्वर हमें जो है प्रकाश हमारे जीवन में हमें प्रकाशित करता है। When we hear the preaching of God's word, और जब हम वचन का प्रचार सुनते हैं, we get light. तो हमें प्रकाश मिलता है। As we pray and spend time with God, we get light. जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, तब हमें प्रकाश मिलता है। So as we grow closer to God, our light will increase. तो जिस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, इस प्रकार हमारा जो है ज्योति वो बढ़ता जाएगा। The path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter. तो जो धर्मी का जो रास्ता है वो सूरज का जो प्रकाश है उसके समान है। वो प्रकाश जब दिन होता है तब से दोपहर तक जैसे वो बढ़ता जाता है, वैसे उसी प्रकार से ज्योति बढ़ता जाता है। So we have to live according to that light. तो हमें उस प्रकाश के अनुसार जीना है। And then we have fellowship with God. तब हमारी जो सहभागिता परमेश्वर के साथ रहेगी। And we have fellowship with one another. और हमारा जो है एक दूसरे के साथ भी सहभागिता रहेगी। Brothers and sisters, when we are not keen to have fellowship with other believers, one of the reasons is that our fellowship with God is not good. तो जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता में नहीं रहना चाहते, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर के साथ सहभागिता है वो भी कम है या वो नहीं हो रहा। See, when our fellowship with God is good and strong, we always want to be available or want to have fellowship with others. जब हमारा जो सहभागिता या संगति परमेश्वर के साथ दृढ़ है, तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ भी संगति में रहें। And the blood of Jesus cleanses us from our sin. और यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें अपने पापों से साफ करता है। Even when we are walking in the light, we can fall into sin. जब हम प्रकाश में चल रहे होते हैं तब भी हो सकता है कि हम पाप में गिर जाए। I'm not. When I say fall into sin, it means like maybe I may have said something which I should not have said. तो
पाप में गिरने का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें बोलना नहीं चाहिए, or I may have a proud thought, या मेरे अंदर एक मंदी विचार आ जाए, okay, or things like that. या इस प्रकार की अन्य चीजें। Or it can be any sin. We can fall, and we need cleansing of the blood of Jesus. और जब हम गिर जाते हैं तब हमें मसीह की लहू की जरूरत पड़ती है कि हम शुद्ध किए जाएं। So the person who's walking in the light always is eager to have fellowship with God. क्योंकि जो प्रकाश में चलता है उसकी इच्छा ये होती है कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहे। So he needs the cleansing of the blood of Jesus. तो इसीलिए जरूरी है कि यीशु मसीह का लहू से वो हमेशा शुद्ध किए जाए। Now in three places in this chapter it says, if we say, और 3 जगह में इस अध्याय में कहा गया है कि अगर हम कहते हैं। so verse 6 we have seen, if we say we have fellowship with God and yet walk in darkness, we are lying. तो जैसे कि 6वें वचन में कहा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले। Now verse 8 says, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. और 8वां वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। The Apostle John, writing this letter in a later stage in his life, is saying, he also is saying that if we say we have no sin, we are deceiving ourselves. तो जो प्रेरित यूहन्ना जो अपने बुजुर्ग जब वो बुजुर्ग बन गए तब उन्होंने ये पत्र लिखा और वो भी कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। At no stage in our life, till the end of our life, can we say we have no sin. तो जब तक हम जीवन के अंत तक हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझ में कोई भी पाप नहीं है। Because we only have some light, but the major part of our life we are not aware. क्योंकि हमें जो प्रकाश उपलब्ध हुआ है वो बहुत ही थोड़ा है। So we must always have that attitude of walking in the light and saying that there may be so many things which is wrong in me, but I'm not aware of. तो हम ऐसे ही हमारा सोच होना चाहिए कि हाँ मुझ में बहुत सारी कमियां हो सकती है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन but I'm not aware of it. हाँ जिसको मैं नहीं जानती। So that will help me to have a spirit of humility. तो ऐसा विचार हमारे मन में हम अगर रखेंगे तो हम नम्र रहेंगे। Now we'll read verse 9. तो 9वां वचन, If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So, as we walk this Christian life, as we walk in the light, uh, we may fall, trip up in some sin. At that time, we must confess our sin. How to get right on any sin is by confessing that sin. तो जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है कि हम किसी भी पाप में गिर जाएं, तो उस पाप से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो एक ही बात हमें करना है, वो है कि अपने पापों को मान ले And confess it to God and say, Lord, I'm sorry for this sin. I don't want to do it again. तो परमेश्वर के सामने हम उस पाप को मान ले और परमेश्वर से कहें कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। So he is faithful and righteous to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. और वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि वो हमें अपने सारे अधर्म से शुद्ध कर पाए और हमारे पापों को क्षमा करे। So, brothers and sisters, we need to live a life where we are cleansed from
or any sin which they are aware of. तो ये बहुत जरूरी है कि हम जिस भी पाप के बारे में हमें ज्ञान है उससे हम अपने आप को शुद्ध करें। Somebody terms it as keeping short accounts. तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो है Short accounts. Don't don't keep our uh, don't keep our the confession pending. तो जो भी हमें मान लेना है परमेश्वर के सामने उसे लंबे दिन तक ना रखें, जल्दी से उसे हम मान लें। For example, if I've got if I've got angry with my wife or with my children, and I say something which I shouldn't have said, uh, after I feel bad about it, I must do something about it. If I keep it pending for tomorrow and day after, that is not short account. That is a long account. There are other things in line. तो इसका ये मतलब है अगर मैं अपनी पत्नी या बच्चों से मैंने अ, गुस्सा किया और उसके बारे में मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ परमेश्वर के सामने, कल या परसों तक उसे ऐसे ही रहने देता हूँ, तो इसका ये मतलब हुआ मैंने लंबे दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको माना नहीं। So God has given us a wonderful provision for us to be cleansed with the blood of Jesus. तो परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता हमारे लिए बनाया है कि हम अपने सारे पापों से शुद्ध हो सके। See, if we don't confess and keep our sins accumulated, darkness has come into our life. तो अगर हम अपने पापों को नहीं मानेंगे और अपने जो पाप है हम अपने हृदय में इकट्ठा करके जमा करके रखेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे अंदर अंधकार प्रवेश कर चुका है। Our fellowship with God is affected. तो इसके कारण परमेश्वर के साथ हम संगति में नहीं रह पाएंगे। If we continue like this, sometimes we will not even know that we are not having fellowship. और अगर हम ऐसे ही जीते रहेंगे तो अ, ये भी हो सकता है कि हम जान भी ना पाए कि हमारी जो परमेश्वर के साथ जो संगति है वो टूट गई है। Then we go into religion. और फिर हम धार्मिक बन जाते हैं। Religion you don't need fellowship with God. तो धर्म में जो है परमेश्वर के साथ संगति की कोई जरूरत नहीं। So, brothers and sisters, this is so critical that we always have a tender conscience so that we can know even a proud thought can affect our fellowship with God. तो भाइयों और बहनों ये बहुत ही गंभीर बात है कि हम अपने विवेक को हमेशा जो है कोमल और शुद्ध रखें, तभी हमारा जो है हम परमेश्वर के साथ जो संगति है वो बना रहेगा। Even if I have a wrong attitude or wrong thought towards a single person, my fellowship with God can get affected. अगर मेरे दिल में किसी एक व्यक्ति के प्रति बुरा विचार है, तब भी मेरा जो संगति है वो परमेश्वर के साथ जो है वो टूट सकता है। But then if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us, and we are walking in the light again. लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। So now the third the time if we say is in verse 10. और तीसरी बार ये दोहराया गया है 10वें वचन में। If we say we have not sinned, यदि we make him a liar and his word is not in us. यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। So uh, here uh, here we are saying that we have not sinned, then we are making him a liar. तो जब हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। So we are saying that uh, we are saying one thing is that we have no sin, but now we are saying we have not sinned. तो एक बात है हम जब हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि हम
कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। In one case, it says that we are saying that we have no sin. और एक बार हम कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, That means I'm pure. तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं शुद्ध हूँ। That is wrong. वो गलत है। We are deceiving ourselves. हम अपने आप को बहला रहे हैं, And if we धोखा दे रहे हैं। and then now one more step, he says we have not sinned. I mean, और I फिर don't I'm not I don't sin. और एक दूसरी श्रेणी में हम पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं कि हमने तो पाप ही नहीं किया है। So then we are making God a liar. तब हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। So yeah. So the main thing about this passage is about fellowship with God. और इस जो अध्याय का जो मुख्य बात है वो है परमेश्वर के साथ संगति। Whenever we go to our Father, when we are sitting before Him or kneeling down to pray before our Father, He is let us know that He is God who is light. जब भी हम परमेश्वर के आगे बैठे हैं या हम घुटने टेक कर उनके सामने हैं, तो हम पूरी तरह हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर ज्योति है। And because He is light, He can see everything in our life. और क्योंकि वो ज्योति है, वो हर एक बात को जो हमारे जीवन में है वो उसे देख सकते हैं। Our life is totally exposed. और हमारा जीवन उनके आंखों के सामने खुला है। Everything is laid bare before the one with whom we have to do. और जिसके साथ हमारा संबंध है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। Our thoughts are known to Him, our intentions are known to Him, our motives are known to Him. और हमारे विचार वो जानते हैं, हम हमारे उद्देश्य और हमारे दृष्टिकोण ये सब वो जानते हैं। What a wonderful privilege of going before such a God. तो कितना सौभाग्य हमें मिला है कि हम इस प्रकार के एक परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। Now the idol worshipper, लेकिन एक मूर्ति पूजा करने वाला, he goes before his idol वो अपनी मूर्ति के सामने जाता है and tries to worship him, और उसकी आराधना करता है। and the idol knows nothing about this man. और वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, Idol has got no life. क्योंकि उस मूर्ति में जीवन ही नहीं। This man can do anything. ये जो मनुष्य जो उसके सामने खड़ा है वो कुछ भी कर सकता है। It doesn't matter before the idol. और वो कोई मायने नहीं रखता उस मूर्ति के He सामने। can worship and do all things, but there is nothing that the idol can do. वो आराधना कर सकता है, गा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो मूर्ति है वो कुछ भी नहीं कर पाता। But the living God is light, and we are before the wonderful Father who loves us, and we can be before Him and enjoy His presence and have fellowship with Him. लेकिन जो जिंदा परमेश्वर है वो तो ज्योति है, तो हम उस पिता के सामने जा सकते हैं और उनके साथ हम संगति में हम रह सकते हैं। It is not just our prayer request that we make, but just be with Him and just have fellowship with Him. और सिर्फ हमारी विनती लेकर हम परमेश्वर के सामने ना जाएं, लेकिन हम जो है उनके साथ जो संगति है उसका आनंद लें। And one last word is that, brothers and sisters, in this age, we find that people say that we don't have to confess our sin to God. और एक और वचन है, मैं मानना चाहता हूँ कि आज के जो समय में लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें अपने पाप मानने की जरूरत नहीं है। So I just want to say omitted this thing. Verse 10 says, if we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. और अ, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका नहीं। Yeah. So now
there are people who say that we must not, there's no need of confessing our sins. और लोग ऐसे आजकल कहते हैं कि हमें अपने पाप मानने की जरूरत नहीं है। Very famous TV preachers, बहुत ही प्रसिद्ध जो टीवी के प्रचारक हैं वो ऐसे कहते हैं। they say Jesus has forgiven us our past, present, and future sins. तो वो लोग कहते हैं, ये प्रचारक कहते हैं, तो हमें हमारे बीते हुए पाप और वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप सबको प्रभु ने माफ किया, क्षमा किया। So if we have committed some sin, then it is forgiven. तो अगर हमने कुछ पाप किया भी है तो भी वो माफ हो गया। So if I commit some sin today, maybe I slapped somebody and in my anger, it is forgiven. There's no need of confessing. अगर मैंने गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ मार दिया तो मुझे अपने पाप मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर मसीह ने मुझे पहले से ही क्षमा कर दिया है। The a big preacher says like this: suppose you have fallen, just get up, dust yourself, and continue to walk. एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि जब तुम गिर जाते हो तो उठ जाओ और अपने आप को छाड़ लो और फिर चलना शुरू करो। So sins are of so many types. और पाप कई तरह के होते हैं। Suppose you fall into adultery अगर आपने व्यभिचार किया or fornication. या Okay. व्यभिचार किया, So how do you dust yourself and get up? तो ऐसे पाप में आप कैसे अपने आप को झाड़ कर ऐसे ही आप चल पाओगे। Another famous preacher says that First John is written to unbelievers, not to believers. और एक दूसरा प्रचारक है जो कहता है कि पहला यूहन्ना जो है अविश्वासियों के लिए लिखा गया है। So there is a teaching, beware of it. तो ये ऐसा उपदेश है जिसके बारे में हमें जो है Beware of the false teaching. ऐसे झूठे जो प्रचारक हैं उनसे हमें दूर रहना है। Okay. So to prove their point, they will say so many things. और अपनी बातों को मनवाने के लिए वो कुछ भी कहते हैं। But this verse 9 is a great lifeline for all of us. लेकिन ये जो पहला अध्याय है सबके लिए एक जीवन दायी वचन है। It's a route back to God. तो ये परमेश्वर के पास हम कैसे लौट कर आ सकते हैं उसका मार्गदर्शक To receive forgiveness and fellowship back again. कि हम किस प्रकार से क्षमा पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ फिर से संगति में जी सकते हैं। So, brothers and sisters, as we meditate on this chapter, God will show so many things to each one of you. तो जिस प्रकार से हम इस वचन पर, इस अध्याय पर हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर हमें इस बारे में और भी प्रकाश दे। May God help us to walk in fellowship with God all the days of our life. परमेश्वर ही हमें सहायता दे कि हम अपने हर दिन जो है हम परमेश्वर के साथ संगति में जी।